Good morning students. How are you all? I hope you all are fine. So today we are going to start chapter 9. Okay. So from today onwards we are starting our second semester. Okay. So in today's class we will study chapter 9 of English grammar, and the name of the chapter is comparison of adjectives. In previous semester we have already done what is an adjective. So let's study adjective, the definition of it one more time so that you can remind it. Adjectives are describing words. They describe or tell us more about nouns or pronouns. They state the size, quality, color and number of the naming words. So what are adjectives? They are just the describing words, okay, and it tell us more about the noun or pronoun. Like it will tell about the size, the color, the quality, okay, of the naming words. Naming words means noun. For example, here he is a fat boy. So the quality of this boy, this is a noun. So fat, it is the describing word. That means it is an adjective, okay, because it is describing that this boy is very fat. Okay. तो एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो कि जो भी नाउन होता है ना उसकी क्वालिटी के बारे में या उसके बारे में कुछ बताती है. जैसे उसके साइज, कलर कैसा है, क्वालिटी कैसी है, नंबर कितना है, उन सब के बारे में. जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है ही इज अ फैट बॉय. तो बॉय जो है वो एक नाउन है, ठीक है, और इसकी किसके बारे में बता रखा है कि वो कैसा है, फैट. तो फैट यहाँ पे एडजेक्टिव है. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. मीना हैज़ 2 डॉल्स. तो यहाँ पे डॉल्स, ठीक है, ये क्या है, नाउन है, और इसके नंबर्स के बारे में बता रखा है 2, तो ये एडजेक्टिव है. तो ये था हमारा एडजेक्टिव. सो नाउ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. Look at the picture and read the sentences below them. This is a horse. The horse is a tall animal. Camel. Camel is taller than a horse. The giraffe is the tallest of all. In all the above sentences, we have used 3 different forms of the same adjective tall. Tall, taller, tallest. Sentence number 1 only tells that the horse is tall and there is no comparison with any other animal. In sentence number 2, there is a comparison between the horse and the camel, and the adjective taller indicates the comparison between the two. In sentence number 3, the adjective tells about the comparison among many. More than 2, the adjective form tallest indicates this. Article the is always used before the adjective in such a sentence. Okay. So the. So my dear students, here you can see it is a horse. So the horse is tall. So in sentence number 1, okay, it is just telling us that the horse is very tall, and it is very tall and there is no comparison with any other animal. Okay, so if somebody say the horse is a tall animal, so there is no comparison. Okay, but in sentence number 2, the camel is taller than a horse, so you can easily see that there is a comparison between camel and horse, and it is indicating that this camel is taller than this horse. So there is a comparison. Okay, and the adjective taller, this taller, it indicates that there is a comparison between 2. For example, here there is a comparison between 2 animals. First is camel and horse. So for comparison between 2 animals, 2 things, this type of form of verb comparison, okay, this type is used. Here taller is used to compare the height between 2 animals. In sentence 3, if the giraffe is the tallest of all, so there is a comparison, but it is among many. Many means if there is more than 2, then we use this type. Okay, and the adjective tallest, it is used here. Okay, and
there is a speciality that you can always see the article the, okay, if there is a comparison between more than two. For example, the giraffe is the tallest, understood? ओके तो बच्चों जो है, अगर हमें कंपैरिजन करना है एडजेक्टिव्स का मतलब होता है विशेषण, ठीक है? तो हम जो है कर सकते हैं, तो हम उसके लिए पढ़ते हैं 3 सेंटेंसेस। यहाँ पे लिखा हुआ है, घोड़ा एक लंबा जानवर है, कैमल घोड़े से लंबा है, जिराफ सभी में सबसे लंबा है, ठीक है? तो जो यहाँ पे सेंटेंस है उसमें 3 फॉर्म्स लगी है एक ही एडजेक्टिव की। एक तो है टॉल, फिर टॉलर, फिर टॉलेस्ट। देखो, अगर आपको जो सेंटेंस 1 है उसमें हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, इस सेंटेंस को देख के आपको कुछ नहीं लग रहा ना, जैसे हॉर्स इज अ टॉल एनिमल, तो किसी और जानवर से यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो इस केस में हम टॉल का यूज़ किया हमने, ठीक है? सेकेंड स्टेप में जो है कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि हम 2 एनिमल की हाइट को कंपेयर कर रहे हैं। कैमल जो है लंबा है, किससे? घोड़े से, देख भी सकते हो आप। तो ऐसे में हमने किसका यूज़ किया? टॉलर का। और थर्ड में जिराफ इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि सभी में जिराफ सबसे लंबा है। तो अगर 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो ना, तो हम किसका यूज़ करते हैं? टॉलेस्ट, यानी कि EST या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का, ठीक है? थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं सेम एडजेक्टिव का। और इसमें एक स्पेशलिटी मिलेगी कि जो एडजेक्टिव है उसके पहले क्या लगा होगा? द। जैसे यहाँ पे देखो, टॉलेस्ट है, इसके आगे क्या लगा हुआ है? द, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स, ओके? सो in most adjective with 1 or 2 syllable, the comparatives are formed by adding er and the superlatives are formed by adding est to the positive, okay? So first is the positive, second is comparative and third is superlative. For example, positive is used when there is no comparison. Comparative is used when there is a comparison between two, okay? And superlative is used if there is a comparison between more than 2, okay? For example, if you want to make comparative, then we have to simply add er. If we want to make superlative form, then we have to add est to the positive one. So what is the meaning of syllable here? Syllable, what is a syllable? Syllable means a unit of pronunciation having one vowel sound with or without surrounding consonants. So any word if it has a one vowel sound, what is the means of vowel? Vowels means in alphabets from A to Z we have A, E, I, O, U, okay? So these are vowels, and all other alphabets apart from this are consonants, okay? So any unit of pronunciation having one vowel sound with or without surrounding consonant, it is a syllable. So here fast, so there it is, here is a vowel, okay? One vowel is there, so it has one syllable. So adjective that has with 1 or 2 syllable, then it can be easily converted into comparative or superlative by adding er or est to the positive degree, okay? तो बेटा जैसे कि अगर हमें मान लो कि फॉर्मेशन करना है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स का, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव है ना उसके अंदर हम er अगर लगाएंगे लास्ट में तो कंपैरेटिव बन जाएगा, est लगाएंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा, ठीक है? कंपैरेटिव का यूज़ किस लिए होता है? जब 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना है। सुपरलेटिव का जब 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना है, ठीक है? दूसरी बात, यहाँ पे सिलेबल का क्या मतलब है? ये एक यूनिट होती है प्रोनाउंसिएशन की जिसमें एक वोवल तो होता ही है। वोवल का मतलब AEIOU जो होता है उनको वोवल कहते हैं। इनके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचे हैं, जैसे C है, B है, Z है, ठीक है, जो भी इनके अलावा बचे उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ठीक है? तो ये जैसे फास्ट है, इसमें कितने, एक हमारा वोवल है ना, तो ये एक एडजेक्टिव है जिसमें कितने सिलेबल है? 1 सिलेबल, ठीक है?
तो ये आपकी मैंने नॉलेज के लिए बताया है। तो जैसे आप देखो फास्ट है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए फास्टर, सुपरलेटिव के लिए फास्टेस्ट, स्मॉल का स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ठीक है। इस वे में आपको कन्वर्ट करना है। रिच का मतलब क्या होता है? रिच मीन्स जो बहुत अमीर है, डीप मीन्स गहरा, ग्रेट मीन्स महान, ठीक है, या बड़ा भी कह सकते हैं, थिक मोटा, स्ट्रॉन्ग मजबूत, ताकतवर, ठीक है, ताकतवर, कोल्ड ठंडा, ब्लैक का मतलब काला, क्लीन का मतलब साफ, डार्क का मतलब जो अंधेरा होता है ना जहाँ पे, उसको कहते हैं, लॉन्ग का मतलब लंबा। तो इनको अगर आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, कंपैरेटिव में करना है तो ER लगाना है लास्ट में, और अगर सुपरलेटिव में करना है तो इस रिच है ना इसके पीछे EST लगा देना है, ठीक है। तो मोस्टली तो ऐसे ही चेंज हो जाएंगे। ये फर्स्ट टाइप था। सेकंड देखो क्या आएगा। इन मैनी एडजेक्टिव्स कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग द लास्ट लेटर ऑफ द पॉजिटिव एंड एडिंग ER एंड EST respectively. For example, red, RED, red. So in this you have to repeat this last word, last letter D, and then add ER. So in comparative it become redder, and in superlative it become reddest. Okay. तो बेटा कुछ बहुत एडजेक्टिव ऐसे भी है जिसको अगर आपको कंपैरेटिव में बनाना है तो सीधा ER नहीं लगा सकते आप। उसके लिए आपको जो लास्ट अक्षर दिख रहा है ना इसका, यहाँ पे D है, तो इसको एक और बार रिपीट करके लिखो और उसके बाद ER लगाओ अगर कंपैरेटिव में है। और अगर सुपरलेटिव में बनाना है तो लास्ट लेटर को एक बार और रिपीट करके लिखो, जैसे D है उसको एक और बार लिखो और उसके बाद EST लगाओ, ठीक है। तो बहुत ऐसे एडजेक्टिव है जिसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बनाने के लिए इस वे का यूज़ होगा। तो रेड का मतलब क्या होता है? लाल। हॉट का मतलब गरम। बिग का मतलब बड़ा। फैट का मतलब मोटा। सैड का मतलब दुखी। थिन का मतलब पतला। डिम का मतलब जैसे फीका, ठीक है। मैड का मतलब पागल। स्लिम का मतलब पतलाई। वेट का मतलब गीला, ठीक है। तो इन सबको बनाने के लिए आप इस वे का यूज़ करोगे। थर्ड, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन ई, R and EST are added for comparative and superlative respectively. So suppose if any adjective it is ending with E, the last word is E. So you need not to add ER again, just add R, okay. E is there, just add R if you want to make it comparative and ST to make it superlative. So wise become wiser, then wisest. वाइस मतलब जो समझदार होता है, ट्रू जो सच है, फाइन ठीक, वाइट सफ़ेद, लार्ज बड़ा, ठीक है। सो दीज ऑल आर एंडिंग विथ ई। सो इन ऑर्डर टू convert it you have to just add R in comparative and ST in superlative. Okay. Fourth one is when the positive end in Y precedes by a consonant, the Y is changed into I before adding ER and EST. So here you can see the last letter is Y and the letter before it is P. So it is not a vowel, it is a consonant. So in order to convert it into comparative, just convert this Y into I and then add ER. Happy become happier and in superlative it become happiest. Okay. तो बच्चों अगर आपको कोई जो है पॉजिटिव में अगर कोई वर्ड है, जैसे कोई एडजेक्टिव है, वो एंड हो रहा है वाई से, ठीक है, और उससे पहले प्रीसीड का मतलब उससे पहले आने वाला जो वो है वर्ड लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो इस वाई को जो है आपको आई में कन्वर्ट करना है और कंपैरेटिव में बनाना है तो ई आर लगा दो, सुपरलेटिव में बनाना है तो आई के बाद ई एस टी लगा दो। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। ईजी का मतलब आसान, मैरी का मतलब भी खुशी, ठीक है। हैवी का मतलब भारी, कॉस्टली का मतलब महंगा, वेल्दी का मतलब बहुत अमीर, ठीक है। तो ये सब भी एंड किससे हो रहा है? वाई से। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आई लगा के ई आर या ई एस टी लगाना है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। ओके। इन मैनी एडजेक्टिव कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग more and most before the positive degree.
Okay, so there are many adjectives in which we can't change it by just adding er or est. What we can do is we have to add more before this word to convert into comparative, and most to convert it into superlative. Okay, तो बेटा कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसको आप ना अगर कन्वर्ट करना चाहते हो कंपैरेटिव में तो आपको मोर लगाना पड़ेगा आगे, अगर सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है तो मोस्ट लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे बेसिकली. तो ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. ठीक है, एक्टिव का मतलब जो बहुत एक्टिव होता है. ठीक है, जो एक्टिव का तो सबको ही पता है क्या मतलब होता है. मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव. फेमस, जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है. ठीक है, यूज़फुल, बहुत ज़्यादा. फेमस का मतलब तो पता है ना सबको, हाँ पता ही है सबको, सब फेमस होना चाहते हैं ना हमारी क्लास में भी. फेमस का मतलब जो बहुत ज़्यादा विख्यात होता है. ठीक है, प्रसिद्ध होता है. यूज़फुल का मतलब क्या होता है, काम का, जो कुछ काम का है. ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ईमानदार है. इंटेलिजेंट का मतलब जो बहुत बुद्धिमान है. ठीक है, तो इन सबको कन्वर्ट करने के लिए कंपैरेटिव में देखो सबके आगे मोर लगा है, सुपरलेटिव में सबके आगे क्या लगा है, मोस्ट. ठीक है, और जो वर्ड है वो ऐसे का ऐसा है. ठीक है, इन सम एडजेक्टिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉजिटिव, दे आर फॉर्म्ड इन अ डिफरेंट वे. सो in all the above example we have seen that there is some changes in the positive degree and we have converted into comparative and superlative, but there are some adjectives which can't be converted like this. They are formed in a very different way, so you have to learn it. Okay, so good, better, best. जैसे गुड है उसका कंपैरेटिव बना बेटर और उसका बना बेस्ट. तो इसको हमने इधर से नहीं लिया, इसको बिल्कुल ही अलग वे में बनाया हुआ है. ठीक है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा. गुड, बैड, वर्ड्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, फार, फारदेस्ट, फार्दर, फारदेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट. ओके, सो गुड का मतलब अच्छा, बैड का मतलब बुरा, लिटिल का मतलब थोड़ा, फार का मतलब दूर, मच का मतलब कुछ, मैनी का मतलब बहुत. ठीक है, तो ये सब जो है इसको कंपैरेटिव में बनाने के लिए ये आपको लर्न करने पड़ेंगे. ठीक है, नाउ 7th, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन y and is preceded by a vowel, then y is not changed into I. We add er and est to the positive to form comparative and superlative respectively. So look at this word grey. Last word is y, but the letter that is before it is e, which is a vowel. So in this case we just add er to this positive degree to convert into comparative and est to it to convert it into superlative. तो बेटा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे जो एंड हो रहे हैं वाई से, बट उससे के आगे आने वाला जो अक्षर है ना वो वोवल है, ए ई आई ओ यू में से एक है. तो ऐसे में इस वर्ड को ऐसे का ऐसा रख के इसके पीछे ई आर लगा दो अगर कंपैरेटिव बनाना है. सुपरलेटिव बनाने का के लिए हम ई एस टी लगा देते हैं. जैसे ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट, गे, गेयर, गेएस्ट. गे का मतलब क्या होता है, गे का मतलब होता है लाइट हार्टेड, चीयरफुल या हैप्पी. ठीक है, सो इन टुडेज क्लास व्हाट वी हैव लर्नड, एंड एडजेक्टिव चेंजेस इन फॉर्म टू शो कंपैरिजन. There are 3 degrees of comparison: positive degree, comparative degree and superlative degree. तो आज की क्लास में हमने पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ा. ठीक है, ये फॉर्म है, ये कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है. पॉजिटिव तो वहाँ जहाँ किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, कंपैरेटिव जहाँ 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन है, और सुपरलेटिव जहाँ 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है. ठीक है, सो with this today's class is over. I hope you understood today's class. Please read this chapter at least 2 times, and in next class we will do the back exercise. Thank you so much. Have a nice day. Bye.